Hello, UPSC aspirants. I am Neeraj Shivare from bookmybrescar.com. Bookmybrescar.com is #1 platform in India to choose coaching institutes in different cities. I will show you how you can book the batch on this platform. Student can log in with their credentials by typing in bookmybrescar.com. This is home page. There are different exams like CAT, CLAT, MSET, GATE, JEE, NEET, and UPSC. So they have to select the exam. Mode is available, which mode, and city. You can choose any city available here. And when you search, you'll find list of coaching institute batches. And below is trending offline classes in Delhi for UPSC. And this is affordable offline classes for UPSC in Delhi. Those who have low budget. And below is test series available for different institute. They can view and purchase from here directly. So on this platform, they can compare the fee structure, ratings, and everything of 3 batches by selecting any 3 institutes batches like this. And they will find the table. They can view all the information, compare facilities, rating, plan, and amount. And they can book accordingly. So coming back to this home page, they can see any information about the batch like this. This is Dars IAS Academy. These are the facilities available in this batch. Below is quality management team rating of BMBC. This rating is very important, student, for to know. This is given by management team. By visiting coaching institute, they negotiate best discount with the institute, and they confirm all the facilities available. They verify and guess best offer for you. And below is student rating given by students on this platform for any institute. Why students should go for Book My Best Class to choose coaching institute? Because BMBC never take any convenience fees and service charge from students. This service is totally free, and we provide extensive list of coaching institute. We provide best offers by negotiating with the coaching institute, and all the information are reliable and verified. So student can pay attention to their studies. If any point of time they feel any inconvenience and any issue, they can approach help center of BMBC. They can put in their inquiry, and it will be resolved very soon. So for booking the batch, they have to click here, apply the offers available on this batch, and when they check out and make payment directly from here. So coming back to our home page. So all the information are available of any institute, batches. Coming back to our session. Today we have Mr. Manish Ji from Dars IAS Academy, the representative of one of the leading coaching center in Lakshmi Nagar for UPSC exam. आज इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जाम के बारे में, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, और क्या सक्सेस रेट है दर्स आईएएस एकेडमी का, एंड व्हाट आर द अपकमिंग बैचेस. सो आई वेलकम मनीष जी ऑन आवर सेशन. थैंक यू सर. यस, दर्स एकेडमी के बारे में बताएं, कितना पुराना है, क्या फैकल्टीज हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और फैकल्टीज के बारे में, और कहाँ फोकस करना चाहिए. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनविटेशन के लिए. थैंक यू. तो सर, जैसे आपने बताया कि दर्स आईएएस एकेडमी लक्ष्मी नगर में इसका लोकेशन है, और पिछले 7 साल से दर्स आईएएस एकेडमी अपना इंस्टीट्यूट चला रही है.
Okay. और उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हम लोग बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आप डिजिटल बोर्ड के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और Okay. कभी भी आप क्लास देख सकते हो। ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि कभी भी आपको अगर क्लास देखनी है और आप उस टाइम नहीं आ पाए तो वो भी देख सकते हो। Okay. और हम लोग जो करते हैं, एक फाउंडेशन बैच होता है, Mm-hmm. और फाउंडेशन बैच में मेंस और प्री की तैयारी साथ साथ चलती है। Okay. और उसका मेन पर्पस जो होता है सर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेन पर्पस होता है। Mm-hmm. इसमें सुधांशु सर, जिन्हें 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो खुद 2-3 बार इंटरव्यू लिखे हैं, मैं भी एज अ फैकल्टी, जिसमें जीएस मेरा काम होता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये कराना। मुझे भी 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, और मैंने भी कई बार यूपीएससी का प्री मेंस ये सारे वर्क किए हैं। Okay. और साथ में जो ज्योति मैम जो इकोनॉमी पढ़ाती हैं, और Mm-hmm. सी साइट के लिए हमारे साथ गौरी सर रहते हैं, Mm-hmm. वो भी साथ काफी क्वालिफाइड है। इसके Okay. साथ साथ अगर फैकल्टी में आप बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, Mm-hmm. अभिषेक सर हैं, Mm-hmm. वो भी एक अच्छे वो है, उनको भी 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो Mm-hmm. ऐसे हमारी फैकल्टी बनती है। और Okay. हमारे बैच की एक खास बात ये होती है कि ज्यादा स्टूडेंट हम रखते नहीं, एक बैच में 20 से 25। Okay. इससे क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अगर अच्छा होता है तो हर बच्चे पे थोड़ा फोकस हो पाता है। Okay. और जहाँ तक सक्सेस रेट की बात करें तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं बैच के, 80% बच्चे का प्री निकल जाता है सर। Okay. तो प्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बच्चा 1 to 1.5 मंथ अगर पढ़ता है तो Mm-hmm. आराम से उसका प्री निकल जाता है। Okay. लेकिन बात आती है मेंस में, मेंस में थोड़ा सा राइटिंग स्किल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Mm-hmm. अगर राइटिंग स्किल क्या होता है, एक तो ये होता है कि आप क्लास में साथ साथ टॉपिक वाइज सीखते चलें। Mm-hmm. दूसरा ये होता है कि टीचर आपको हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए देता है, Mm-hmm. उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होती है। साथ में ही हमारी टेस्ट सीरीज होती है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल होती है, और ऑफलाइन भी आप आके टेस्ट दे सकते हो। Okay. तो वीक में डेली एक टेस्ट हमारा होता है, Mm-hmm. उसमें बच्चे को थोड़ा नर्चर करने का कोशिश किया जाता है, और उसमें प्री प्लस मेंस दोनों टेस्टों को एक कई बार यूनिट वाइज कंबाइन कर दिया जाता है। फिर बाद में जैसे जैसे ऑप्शन खत्म होता है, जैसे जैसे उसका कोर्स खत्म होता है, फिर अलग अलग चीजें उनको डिवाइड करके कर दिया जाता है। Okay. ये सारी गाइडेंस बच्चे को टाइम टू टाइम मिलती है। Mm-hmm. और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे, क्योंकि स्टडी एक पार्ट होता है, इसके साथ साथ तो बच्चे के लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि Mm-hmm. बहुत टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, अगर आप देखेंगे सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेंटेलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। Mm-hmm. कई बार बहुत बच्चे ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कई बार प्रेशर भी आ जाता है। Mm-hmm. वहां पे जो मेन काम आता है स्ट्रेटजी। तो Mm-hmm. वहां पर हमारी मेंटरशिप ऐसे काम करती है कि कुछ बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 5-5 बच्चे हर फैकल्टी के साथ डिवाइड कर दिए। तो उसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, उसका मेन काम होता है कि जो आपके अंडर 5 बच्चे हैं, उनका मेंटल चीज कैसा चल रहा है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही साइकोलॉजिकली, या उन्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और फिर उनके साथ टाइम टू टाइम वीक में एक बार या फिर मंथ में 2 बार या 3 बार उनसे कॉलिंग की जाती है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे से ऑफलाइन टीचर भी बात करता है। लेकिन ये हमारे एक अलग पार्ट होता है जिसमें कि पर्सनल गाइडेंस बच्चे को मिलती है, कि आपको डरना नहीं है। अगर ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, कभी स्टडी अच्छी चलती है कभी नहीं चलती, लेकिन अगर आप एवरेज मेंटेन करके रखते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। Okay. तो ये हमारा स्ट्रेटेजी का पूरा प्रोसेस होता है। Okay. और उसके साथ साथ कई बार पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है कि भाई बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मेंटली प्रेशर हो या फैमिली प्रेशर हो, वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है जो बच्चे को हैंडल करना होता है। Mm-hmm. तो उसमें पेरेंट के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करना, ये सारी चीजें। और जहाँ तक बात आई सर फीस की, तो फी का स्ट्रक्चर ऐसा रखा है जिसमें ऑनलाइन थोड़ा सा हाफ हो जाता है, ऑफलाइन का जो हमारा कोर्स है वो 80,000 के आसपास आपको मिल जाता है। Mm-hmm. लेकिन अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती तो उसमें हम बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, Okay. इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, जैसे दिव्या जी हैं, उनके फादर थोड़े से इनकम उनकी कम है तो उनको हम पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं। Okay. साथ में ही जैसे ही ऑनलाइन क्लास आता है तो उसका हाफ फीस हो जाता है, 80,000 ऑफलाइन का है, ऑनलाइन का आपका 40,000 हो जाएगा। Okay. और इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स तो मिलेगा ही, कि एक पूरा फाउंडेशन कोर्स जिसमें आप जीएस पढ़ोगे, साथ में सी सेट पढ़ोगे, जिसमें प्री की तैयारी मेंस की तैयारी ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। साथ में आप हमारे पोर्टल पे टेस्ट सीरीज, और साथ में उन टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन भी देते हो। Okay. इसके अलावा टाइम टू टाइम डेली आपको करंट अफेयर,
वो क्लास कराई जाती है, और वीक में एक करंट अफेयर की क्लास जिसमें पूरे वीक का रिवीजन कराया जाता है, Okay. वो भी साथ में चलती है। और जो हमारा क्लास ड्यूरेशन होता है वो 3 to 4 आवर्स, शुरुआत जैसे बच्चे की होती है तो लगभग 2 क्लास उनकी होती है, तो उस क्लास में उनको आना होता है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका इम्प्रूवमेंट होता है, एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो थोड़ा-सा बैच को थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है, साथ में रिवीजन बैच भी चलते हैं। Okay. इसमें बच्चे को 6 से 7 घंटे रिवीजन कराया जाता है, साथ में प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो कि आपके पास नॉलेज कम है, उसके बावजूद भी कॉमन सेंस लगा के आप कैसे यूज़ कर सकते हो। Okay. क्योंकि ये एग्ज़ाम जितना नॉलेज का है, उससे भी ज़्यादा है कॉमन सेंस का। क्योंकि हम्म। हम सबके साथ एक ड्रॉबैक ये रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो थोड़ा-सा रटने पे फ़ोकस करता है। हम्म। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस ज़्यादा मैटर करता है। रटने का है, आप कह सकते हो कि 20 से 30% आप प्री में आपको फैक्ट चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको 70% अपना कॉमन सेंस चीज़ों को इंटरलिंक करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने देखा कि भई इज़राइल-फ़िलिस्तीन के बीच वॉर हो रहा है। हम्म। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है, इज़राइल-फ़िलिस्तीन के बीच वॉर हो रहा है, साथ में ही इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरुआती फेज में जब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हम जानते हैं कि भई शुरुआत में इंडिया ने फिलिस्तीन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इज़राइल से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। लेकिन जैसे-जैसे इज़राइल से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिली, साथ में इज़राइल ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया, चाहे वो इंडिया-पाकिस्तान का वार हो 1965 का, या फिर इंडिया-चाइना का वार हो, उसमें भी इज़राइल हमारे साथ रहा। और साथ में बहुत सारे ज्यूज़ लोग इंडिया में भी रहते हैं। तो उससे धीरे-धीरे हमारी फॉरेन पॉलिसी को लगा कि हम फिलिस्तीन के साथ रह के, और इतना सपोर्ट भी हमें और कंट्रियों का नहीं मिला जो फिलिस्तीन के कॉज़ को सपोर्ट करती थी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में 90s के बाद थोड़ा शिफ्ट हुआ, और उसी का एक बड़ा एंगल दिखता है कि मोदी जी ने विज़िट भी किया इज़राइल का, और फिर उसके बाद हमारे रिलेशन और अच्छे हो गए। इसलिए इंडिया अब इज़राइल की तरफ, अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्लियर पार्ट है कि हम इज़राइल के साथ हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो करंट अफेयर में चल रही हैं और जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी। फिर वहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे आप मैप को अटैच करोगे। आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न है वो फैक्ट के साथ-साथ मैप को अटैच कर देती है। कि हम्म। बताइए कि इज़राइल के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन क्या आपको लोकेशन पता है मेडिटेरियन सी उससे बॉर्डर लगाता है या नहीं? या उसके आस-पास की जो कंट्री है वो लगाते नहीं? ये सारी चीज़ें जो हमारा करंट अफेयर वाला पोर्शन होता है उसमें हम कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ में मैप से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर एक इमेज बने। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, उसका एक होता है कि वीडियो अगर उससे मिले, इमेज उससे मिले तो उसे अच्छा लगता है। तो उस मेंटल साइकोलॉजी का भी प्रेशर पूरा तरीके से रहता है। तो जितना माइंड को कूल रखेंगे उतना आपको आसानी होगा। वैसे थोड़ा दिक्कत तो है ही कि भई टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन धीरे-धीरे अगर उसे छोटे-छोटे पीसेस में बाँटे, तो हम आराम से उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस यही होता है कैसे उसे ब्रेक डाउन करके धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाया जाए। और बहुत सारे बच्चे अब धीरे-धीरे 12th के बाद भी कोर्स लेने लगे हैं। तो वो भी हमारा प्लान चलता है, 3 ईयर का कोर्स होता है वो। ओके। तो उसमें हम उस बच्चे को उसी हिसाब से मेंटरशिप देते हैं, कि पहले उसे बेसिक चीज़ें पढ़ाना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करना, फिर उसे धीरे-धीरे जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें उनको इंक्लूड करना, और जब तक एग्ज़ाम आता है तो बच्चा इतना प्रिपेयर हो जाता है कि उसका आराम से प्री और मेंस में आराम से हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है कि जैसे ही आप प्री निकालते हैं, तो प्री और मेंस के बीच में 2 एंड हाफ मंथ का डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में ये होता है कि जो बैच होता है वो मेंस का ही होता है। आप देखेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस वो मेंस का सिलेबस है, प्री का कोई सिलेबस नहीं होता। हम्म। मेंस से ही हम प्री का सिलेबस ड्राइव करते हैं। तो मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप करंट अफेयर से अटैच कर देते हो, तब वो आपका एक तरीके से प्री का एक तरीके क्वेश्चन पेपर बनता है। तो उसमें मेन फोकस यही होता है कि कैसे आप मेंस की अच्छे से तैयारी करें, और उसने टाइम से पहले जब तक आप प्री दें उससे पहले आपका मेंस रेडी होना चाहिए। वरना मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। और मेंस के लिखने का तरीका एक ही है कि आप जितना राइटिंग स्किल करोगे उतना आप सीखोगे। और हम्म। ये स्किल है, जैसे हम हर स्किल को सीखते हैं, कोई पेंटर है वो पेंटिंग करना सीखता है, ऐसे राइटिंग भी एक स्किल है। और इसको धीरे-धीरे सीखा जा सकता है, धीरे-धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अचानक ये नहीं आती, प्री करना 4-5 महीने में आसान है। मेंस अगर आप कहेंगे 4-5 महीने में कोई बच्चा करेगा तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए हम्म। डिज़ास्टर एक तरीके से हो सकता है। और फिर साथ में ही एक सब्जेक्ट और ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आती है, जैसे पहले तो ये नहीं पता होता कि हमें कौन-सा सब्जेक्ट लेना है।
पहला चैलेंजिंग ये होता है। फिर साथ में ही ऑप्शनल में मार्क्स कैसे आ रहे हैं ये भी मैटर करता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर के थ्रू काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स या अपना टेक्निकल बैकग्राउंड का लेके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन सबके अपने कुछ पॉजिटिव हैं, सबके कुछ अपने नेगेटिव हैं, और सबकी अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। किसी ने मैथ बचपन से पढ़ा है या उसकी इंजीनियरिंग में भी था इसलिए उसका अच्छा है, लेकिन किसी का हो सकता है कि ह्यूमैनिटी का है उसका मैथ अच्छा ना हो। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं यूपीएससी में, दो चीजें उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं 250 मार्क्स के ईच के। उसमें आप आराम से अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो 60 to 70% मार्क्स लेके आ सकते हैं। जनरल स्टडीज में हमारे 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और GS4 तक, 250 मार्क्स का ईच होता है। जनरल स्टडीज में ज्यादा स्कोप नहीं होता, उसमें आप मैक्सिमम 45%, और ज्यादा कोई करेगा तो 50%, उससे ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं आते। टॉपर के जो मार्क्स आते हैं वो 45-46%, जो छोटे एवरेज आते हैं उनके 40%, इसके आसपास मार्क्स आते हैं। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज आपके पास ऑप्शनल में होता है, वहां से आप एक तो ग्रेप को कम कर सकते हो। साथ में ही आपके पास ऐसे ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैटर करता है एनालिटिकल स्किल, कि आप किसी टॉपिक को कितने तरीके से जोड़ दिए। जैसे एक बार एक ऐसे यूपीएससी ने पूछा था, ट्रूथ इज ओनली ट्रूथ, ये कोट था एक थिंकर का, उसको उसने दे दिया। अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो कि सत्य ही एकमात्र सत्य है। अब आप इसको ह्यूमन बीइंग से भी जोड़ सकते हो, आप इसको धर्म से भी जोड़ सकते हो, आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर चीज में लॉजिक लगता है। साथ में आप एनवायरनमेंट से भी जोड़ सकते हो। तो ये कितने कितने एंगल से आप सोच सकते हो, ये एनालिटिकल स्किल आपकी ऐसे में चेक की जाती है। ऐसे में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके 160 भी आते हैं 250 में से, जो खराब परफॉर्म करता है उसके 60 भी आते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और इसमें जितना आप प्रैक्टिस करते हो, और इसमें एक और चैलेंजिंग ये होता है, जो मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 15 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है, आपसे 200 वर्ड्स में लिखवाया, 150 वर्ड्स में लिखवाया। ऐसे में आपसे लगभग 900 से 1200 वर्ड्स में लिखवाया जाता है, और उसका मेन पर्पस ये होता है कि आपकी सोच को पकड़ना। जैसे आप ज्यादा 1-2 पेज लिखेंगे या किसी से बोलेंगे तो उससे आपके थॉट के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें बच्चों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कि एक तो ऐसे, साथ में उनका ऑप्शनल, वो शुरू से उनका मजबूत हो, प्री देने से पहले आप उन चीजों पे काम कर सको। तो हमारे उसमें भी इंस्टीट्यूट में कई सारी ऑप्शनल मिलती हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर आप कर सकते हो, हिस्ट्री आप कर सकते हो, PSIR पवेड आप कर सकते हो, सोशियोलॉजी, ये भी आपको ऑप्शनल मिलती है। और अलग अलग फैकल्टी जिन्होंने उससे एग्जाम को दिया भी है, साथ में उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे सुधांशु सर हैं, उनका बहुत अच्छा सोशियोलॉजी में है, ज्योति मैम है उनका PSIR में है। तो ये सारी चीजें वो से, और हमारी ज्यादातर फैकल्टी जो भी है वो पहले यूपीएससी एग्जाम दे चुकी है, और सबने मैक्सिमम ने इंटरव्यू दिया है या किसी ने कुछ दिया, उसके बाद उन्हें लगा कि भाई कैरियर में सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो उन्होंने टीचिंग में चूज किया। और इस इंस्टीट्यूट की एक और खास बात कि सबने मिलके कॉपरेशन के साथ इस टीम को खड़ा किया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई एक कॉर्नर है, सब मिलके एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और सबको काफी फ्रीडम होती है कि टीचर अपने हिसाब से स्किल का यूज कर सकता है, जैसा उसे लगता है वैसा उस बैच को बना सकता है। तो Okay. ये सारी चीजें उसमें include। और फिर उसके बाद जैसे ही जो बच्चा मेंस निकालता है, जैसे मैंने बताया 80% बच्चों का प्री निकल जाता है, और लगभग 40% बच्चे मेंस निकालते हैं। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, और यूपीएससी अपने इंटरव्यू को इंटरव्यू नहीं बोलता, बोलता है पर्सनैलिटी टेस्ट। क्योंकि आपका जो नॉलेज था वो प्री में चेक हो चुका, आपका जो एनालिटिकल स्किल था वो मेंस में चेक हो चुका। अब बात आती है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाए, आप DM बन गए, IAS ऑफिसर। अब बहुत सारे कम्युनल वायलेंस होती हैं, अब कोई दंगा आपको बता के तो होगा नहीं, तो आपको प्रेस को ब्रीफ करना है, वो भी 10 मिनट में। और सबको आपको बोलना भी ऐसा है कि सब कम्युनिटी को ये ना लगे कि ये हमारे खिलाफ है, वरना हो सकता है कि आपकी स्पीच की वजह से दंगा और भड़क जाए। तो उसमें मैटर करता है कि कैसे आप अपने वर्डों का यूज करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई का ट्रायंगल, जो फेशियल ट्रायंगल है वो आपने कैसे एक्सप्रेस किया। तो वहां पर वो प्रेशर में डालते हैं
5 मेंबर की कमेटी होती है और अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं कि 40 साल एक्सपीरियंस है आईएएस की जॉब में। तो आसान नहीं होता वहाँ पे वो सारी चीज़ें रखना, और झूठ बिल्कुल नहीं चलता वहाँ पे, क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं। मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है, तो उसमें वो पता होता है कि जैसे ही आप कुछ भी कहोगे तो उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, और साथ में उसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस होता है। और साथ में बच्चे ने जो ग्रेजुएशन किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको अपने बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए। कि आप कहाँ से आए, कौन-सा आपका डिस्ट्रिक्ट, कौन-सा आपका स्टेट, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में देते हैं। और इंटरव्यू में हम कोशिश करते हैं कि जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, उनको हम बुलाएँ और उनके थ्रू उनको और गाइडेंस मिले, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं और सबका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और बार-बार उनके इंटरव्यू कंडक्ट करा के कोशिश की जाती है कि वो अपने आराम से अपने ड्रीम में या अपने सपनों को आराम से पा सकें। तो ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, और आप जो पूछना चाहेंगे? अपकमिंग बैचेस कोई है रिसेंट? जी सर, अपकमिंग बैचेज़ में अभी हमारे पास दिवाली के बाद ओके। अ, नवंबर के एंड ऑफ वीक में वो हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है। आप कह सकते हो कि 21 नवंबर के बाद वो बैच स्टार्ट होने वाला है, और एक बैच उसमें इंग्लिश मीडियम का बनेगा, एक हिंदी मीडियम का। ओके। और दोनों बैच हमारे सेपरेट होते हैं, लेकिन जब राइटिंग स्किल की बात आती है तो दोनों को कॉमन कर दिया जाता है, कंबाइन, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दोनों बच्चों को सीखना होता है। So thank you very much, Manish ji. Today's session will really help students, those who are preparing for थैंक यूपीएससी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यूपीएससी एग्जाम के बारे में बताया और अपने इंस्टीट्यूट में किस तरह से वो हर स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल फोकस करते हैं, क्या स्ट्रेटजी वो प्ले करते हैं ताकि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकें। बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस भी दिया हर इंटरव्यू में और ऑप्शन सब्जेक्ट्स में, प्री और मेंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत अच्छी अप्रोच के बारे में बताया, अच्छी तरीके से समझाया। तो आई विश मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन दर्श आईएएस एकेडमी इन लक्ष्मी नगर. It has a very successful rate and one of reliable partner of BMBC. Thank you, sir. यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका भी।